Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Bhagavad Gita and today I am going to talk about the quality of Brahmin, the quality of super soul, the quality of the person who is connected with Lord Sri Hari, Lord Krishna. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by S.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu. This is most authentic source and this is the best version of Srimad Bhagavad Gita, and I would love to read this version of Srimad Bhagavad Gita, which one is written by S.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu. And I would say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense it's pure book of the science and humanity. I am trying to propagate the humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. तो चलिए बात करते हैं the quality of Brahmin. The quality of Brahmin, who are those all people who known as a Brahmin? तो ब्राह्मण बनने की क्या क्वालिटी है? बाय बर्थ, जन्म के आधारित पर नहीं, नेवर नेवर नेवर. जन्म के आधारित पे कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं. Only and only on the basis of karma, on the basis of karma, deeds and karya action, and as well as a knowledge and skill, as well as occupation. Occupation, this is most important. Lord Krishna here said, chapter number 5th, Karma Yoga, the action in Krishna consciousness. How to perform Karma Yoga? How to perform action in Krishna consciousness? Here Lord Krishna says, Yoga Yukto Visuddha Atma, Vijit Atma Jitendriya, Sarva Bhuta Nama Kurvana Api Na Lipyate. Sarva Bhuta Bhutatma Bhuta Nama Kurvan Api Na Lipyate. Kurvan Api Na Lipyate. Here Lord Krishna said to Arjuna, Brahmin कौन है? Who is Brahmin? One who work in devotional service. So अपना काम, अपना जो भक्ति में अपना कार्य करता है, who is pure soul. Brahmin who is very pure soul and who control his mind, sense and is very dear to everyone. जो अपने senses को और mind को control करता है, he is very dear to everyone and everyone is dear to him. And उसके लिए सभी उसके बहुत प्रिय होंगे, वो भी सबको बहुत प्रिय होगा. And though always working, such a man never entangle. ब्राह्मण है तो ऑलवेज वर्क करता रहेगा, कार्य करता रहेगा, कभी एंटेंगल नहीं हो, कभी किसी व्यक्ति के साथ किसी के साथ जुड़ेगा नहीं. दैट इज कॉल्ड ब्राह्मीण. दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, द पर्सन हु हैज दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज अ ब्राह्मीण. लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, द पर्सन इन डिवाइन कॉन्शियसनेस. लॉर्ड कृष्णा हियर सेड वर्स नंबर 8 and 9, द ब्राह्मीण, द पर्सन who is in divine consciousness. So परमात्मा की divine देविक conscious, देविक जागृति में है जो person, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, and always knows within himself that he actually does nothing at all. वो कुछ भी नहीं कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, कुछ भी बहुत सारी मटेरियल चीज़ें कर रहा है वो, पर सब कुछ करने के बावजूद भी वो अकर्ता है, करता होने के बावजूद भी वो करता है. However, the person is doing all the activities, apply all the action, that person is a karta. And because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eye, आँख खोलना, जब आँख बंद करता है, खोलता है, खाना खाता है, बोलता है, ऐसा पर्सन वो परमात्मा को याद करता है. प्रभु चरण में चला जाता है, परमात्मा को कभी भूलता नहीं, परमात्मा को याद करता है. ऐसा डिवाइन लव अगर हमने डेवलप कर लिया तो हम भी ब्राह्मण है. सभी वेदों के जानकार है, वो ब्राह्मण है, परमात्मा के साथ उनका डिवाइन कॉन्शियसनेस है, डिवाइन रिलेशन. दैट पर्सन इज नोन एज अ ब्राह्मण. Here Lord Krishna never talk about on the basis of the birth, the person quality on the basis of occupation, the quality basis division or division, the quality basis division of the varna, not on the basis of birth. He always knows that only the material sense are engaged with their object. He is aloof from them. हमारी जो मटेरियल सेंसेस है, ब्राह्मण क्या चाहता है पता, हमारी मटेरियल सेंसेस है ना, वही ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, पर हमारी बॉडी, हमारे जो सॉल है,
वो तो उससे ऊपरी है, मतलब उससे कभी एसोसिएट है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, ब्राह्मण्य आद्य कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यह, संगम त्यक्ता करोति यह, संगम त्यक्ता करोति यह, लिप्यन्ते न स पापेन, लिप्यन्ते न स पापेन, पद्मपत्रम एवं भाषा, पद्मपत्रम एवं भाषा, पद्मपत्रम एवं भाषा। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? वन वो परफॉर्म हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या करता है? ही परफॉर्म हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, सरेंडरिंग द रिजल्ट अनटू द सुप्रीम लॉर्ड। जो भी रिजल्ट आता है, जो भी अपना कर्म करता है, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो परमात्मा को समर्पित करता है। And he is unaffected by sinful action. That person is unaffected by sinful action, as lotus leaf is untouched by water. जो पद्म पत्र होता है, जो पद्म पत्र, लॉटस लीव, जो कमल के पत्र है, जो कमल की पंखुड़ियां है, कभी पानी को टच नहीं करती, ऐसे व्यक्ति को कोई भी पाप, कोई भी मटेरियल सेंसेस और मटेरियल ऑब्जेक्ट उसको टच नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति कभी भी लिप्यंती, उसको कभी भी उसको मतलब लिप नहीं जाता, अंदर उतर नहीं जाता, उसको एसोसिएट नहीं हो जाता वो व्यक्ति। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, कायेन मनसा बुद्धा क्लेवर्य इंद्रियाणि अपि, कायेन मनसा बुद्धया, कायेन मनसा बुद्धया क्लेवर्य इंद्रियाणि अपि, योगिनाः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता शुद्धय। योगिनाः कर्म कुर्वन्ति, योगिनाः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता शुद्धय, संगम त्यक्ता शुद्धय। लॉर्ड कृष्ण हियर से द योगी, द ब्राह्मण, द योगी, द ब्राह्मण abandoning the attachment, renunciating the attachment, act without body, always acting with a soul, act without body, mind and intelligence, and even with the senses. Apart from this all things, acting always without body, mind, intelligence and senses. Body, mind, intelligence and senses, these all are responsible for our material bondage. When we start our work from our soul, at that time we will associate with the super soul and we can easily deliver from the ocean of the birth and death. We have to understand, to work, we have to learn how to work from the soul. By the Sankhya Yoga, we can only learn how to work from the soul, only for the purpose of purification. This is the person, the Brahmin is always working for purification, always working for the purification. Lord Krishna further say, युक्ताः कर्म फलम त्यक्ता शांतिम अपनोति नैष्टिकीम, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निव्यते, सक्तो निव्यते। लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं? लिसन इट वेरी केयरफुली। द स्टेडीली डिवोटेड सोल, जो परमात्मा में, जो जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, जो आत्मा ने परमात्मा को अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, जिस व्यक्ति ने, वो क्या करेंगे? अनएडल्ट्रेड, उसकी कभी भी वो हमेशा प्योर रहेगा, उसको कभी विशुद्धि नहीं आएगी, एंड अडल्ट्रेट पीस, उसको हमेशा परम शांति मिलेंगी, बिकॉज ही ऑफर द रिजल्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू मी। ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे समर्पित किया है, लॉर्ड कृष्ण, ऐसा व्यक्ति जो इसने मुझ में समर्पित किया है, वो सब कुछ अपने कार्यों का रिजल्ट है ना, परिणाम है ना, वो मुझे अर्पण करता है, इसीलिए उसको परम शांति मिलती है। वेयर इज द पर्सन हु इज नॉट इन यूनियन विद द डिवाइन, जिसने मुझे समर्पित किया है ना, कोई भी करिए, चाहे वो मतलब डिवाइन जो भक्ति नहीं करता हो या डिविनिटी नहीं हो उस व्यक्ति में, जो व्यक्ति मुझ में समर्पित किया है ना, और उस जो भी व्यक्ति उसके कार्य मुझ में समर्पित कर रहा है, उसका जो भी रिजल्ट है मुझे समर्पित कर रहा है, ऐसा व्यक्ति हमेशा मेरे में सिचुएटेड होता है। ऐसे व्यक्ति को परम गति मिलती है, परम शांति मिलती है। हु इज ग्रीडी फॉर द फ्रूट ऑफ हिज लेबर, apart from this, where who is not in union with the divine, who is greedy for the fruit of his labor, become entangled. जो व्यक्ति मुझ में समर्पित नहीं किया है, जिस व्यक्ति ने, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसके पास नहीं है ना, वो भटकता रहता है, इधर उधर मटेरियल चीजों में भटकता रहता है, उलझा रहता है वो। लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वसी,
नवद्वारे पुरी देही नैवी कुर्वन् कार्यन, नैवी कुर्वन् कार्यन। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? When the embodied living beings control his nature and mentally renounce all the action, he resides happily in the city of 9 gates. He resides happily in the city of the 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. उसके लिए कोई कार्य करना नहीं, कोई कार्य का कारण बनना उसके लिए कोई मान्य नहीं रखता। वो कभी भी एसोसिएट नहीं होता है ऐसी चीजों से। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, ना कर्म फला संयोगम स्वभावस्य तु प्रवर्तते। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? द एम्बेडेड स्पिरिट मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी, जिसने अपनी मतलब बॉडी को कंट्रोल कर लिया। जो सॉल है ना, वही एक्चुअली हमारी आत्मा हमारी बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए, हमारी आत्मा को। बट क्या करते हैं? सभी लोगों में विपरीत होता है। जो योगी होता है, जो ब्राह्मण होता है, अपनी आत्मा से अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। बट जो कॉमन पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बॉडी को अपनी आत्मा से कंट्रोल करते हैं, ढक लेते हैं पूरा, और मटेरियल चीजों को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। जो भी उसको एक्सपीरियंस मिलता है मटेरियल ऑब्जेक्ट से, उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, नादते कस्यति पापन ना चेव सुकृतम विभुः, अज्ञाने ना वृत ज्ञान तेन मुहयन्ति जनत्व। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? नॉट डज द सुप्रीम लॉर्ड एज्यूम एनीवन्स सिंफुल और पायस एक्टिविटीज। Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers the real knowledge. जो हमारे इग्नोरेंस है ना, हमारा अज्ञान है ना, वही हमारे सही ज्ञान को, जो परमात्मा के साथ हमारा रिलेशन है, उसको कवर कर लेता है। जो ब्राह्मण का एक क्वालिटी नहीं, अज्ञानता ब्राह्मण की क्वालिटी नहीं है। जो पर्सन लॉर्ड कृष्णा की डिविनिटी में है, उसके लिए अज्ञानता उसकी क्वालिटी नहीं है। उसके लिए क्वालिटी है परमात्मा में अपने आप को समर्पित करना। जो ब्राह्मण का मतलब कोई कास्ट के बारे में नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कास्ट, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णाज real devotion. I am talking about the Krishna conscious person. I am talking about divine conscious person, divinity person, the divine quality, the person who are having a divine quality. I am only talking about this kind of people. ज्ञानेन तु तद ज्ञान येषम नाचितम आत्मानः तेषाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाशयन्ति तत्परम। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं? When however one intelligence with the knowledge by which nescience is destroyed, nescience means ignorance, ignorance जब डिस्ट्रॉय हो जाता है ना हमारी बॉडी से, तब हम ब्राह्मण बन जाते हैं। Then his knowledge reveals everything, उसका जो नॉलेज है ना सब कुछ रिवील कर देगा। हमारा परमात्मा के साथ क्या रिलेशन है, क्या नहीं। हमारा इग्नोरेंस, हमारा जो अंधकार है ना, अंधकार से हम बाहर निकल जाएंगे ना, तो हमारा नॉलेज है वो सब कुछ वो बयान कर देगा। जैसे कैसे बयान करेगा? सन लाइट्स अप एवरीथिंग इन द डे टाइम। अगर हम अंधकार में, अंधेरे में हैं, हमें कुछ नहीं दिखेगा। जब सनलाइट होगी तो हम सब कुछ दिखने लगेगा। हमारी अज्ञानता ही हमारा अंधकार है। लिसन इट वेरी केयरफुली, हमारी अज्ञानता ही हमारा अंधकार है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, तद बुद्धाय तद आत्मा न स त निश्चित तत् प्रयाणः गच्छन्ति अपुन अवतहि ज्ञान निर्भूत कल्मष ज्ञान विभूत कल्मषः। और कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं? व्हेन वन इंटेलिजेंस माइंड फेथ एंड रेफ्यूज आर ऑल फिक्स्ड इन द सुप्रीम, जब उसकी दिमाग, उसका माइंड, उसकी फेथ, उसकी श्रद्धा अपने जो भगवान की शरण में चला जाता है ना, तो मतलब परमात्मा में अपने सब कुछ दे देता है। उसी को हम ब्राह्मण कहेंगे। वन बिकम अ फुल्ली क्लींस्ड ऑफ मिसगिविंग थ्रू द कंप्लीट नॉलेज एंड दस प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। ऐसे व्यक्ति को परम गति मिल जाती है, परमात्मा का सानिध्य मिल जाता है। और क्या चाहिए हमें यार? ब्राह्मण का, हमें हम सबको ब्राह्मण बनना है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता। द क्वालिटी वी हैव टू फॉलो। कोई कास्ट किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कलयुग है, मैं कभी कास्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैंने बताया है। मैं बता रहा हूँ क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण, द पर्सन हु इज इन डिविनिटी।
जो परमात्मा की भक्ति करे उसकी क्वालिटी क्या है, उस व्यक्ति को हम ब्राह्मण कहेंगे। जो लॉर्ड कृष्णा कॉन्शियस है, लॉर्ड कृष्णा में अपनी चेतना को एस्टेब्लिश किया, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। विद्या विनय संपन्न, लॉर्ड कृष्णा फर्दर से विद्या विनय संपन्न, लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं ब्राह्मण क्वालिटी विद्या विनय संपन्न है, जो विनयी है, जो हम्बल है, विद्या है जिसके पास, विद्या विनय संपन्न है। ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, ब्राह्मण गवी हस्तिनी, सुनी चे सव पाके च पंडिता समदर्शिनाः, पंडिता सदर्शिनाः, पंडिता समदर्शिनाः। लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, द हम्बल सेज, द ब्राह्मण हम्बल सेज, जो योगी होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो क्या करता है, बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज, उसके पास रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज, उससे क्या करता है, सी विथ इक्वल विजन अ लर्नेड एंड जेंटल ब्राह्मणा, अ काउ, एलिफेंट, अ डॉग एंड डॉग ईटर, सभी को एक समान दृष्टि से देखेगा। उसके प्रति उस व्यक्ति के हृदय में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, तफावत नहीं आएगा, भेदभाव नहीं आएगा, वो सभी व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखेगा। जैसे मंदिर में अलाउ नहीं करते थे जो शूद्र लोगों को, वो ब्राह्मणिज्म नहीं था, वो हिंदुइज्म है ही नहीं। हिंदुइज्म ये चीज है जो भगवत गीता में कही गई है। हम सब लोग तो मतलब हमें भटका दिए, हम भटक रहे हैं सब लोग, जो दलित शूद्र क्या है, सब कुछ ब्राह्मण वैश्य सब जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं हम लोगों ने बनाए हैं, भगवान परमात्मा ने नहीं बनाए हैं। परमात्मा ने बोला जो योगी है, जो मेरी कॉन्शियसनेस में है, वो सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखेंगे, चाहे डॉग ईटर हो, आउटकास्ट हो, चाहे वो एलिफेंट हाथी हो या पत्थर हो, ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो, सभी व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखेगा वो व्यक्ति, जिसी को हम ब्राह्मण कहेंगे। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, इव तेर जितः सर्गो यशम समय स्थितम मनः, स्थित मनः, जिसका मन स्थिर है, ब्राह्मण का मन हमेशा स्थिर होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे। निर्दोषम ही समाम ब्रह्मा तस्माद ब्रह्माणि ते स्थितः, तस्माद ब्रह्माणि ते स्थितः, तस्माद ब्रह्माणि ते स्थितः। लॉर्ड कृष्णा सेड हियर, those whose mind are established in sameness and equanimity have already conquered the condition of the birth and death. जो व्यक्ति इक्विपोज्ड है, जो सुख और दुख सभी चीज़ों में, सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है, वो जो इक्विनिमिटी स्थिरता प्राप्त कर ली है, स्थित प्रज्ञ बन गया है, वो जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है, व्यक्ति ऑलरेडी अचीव्ड, एंड दे आर रियल ब्राह्मण, दे आर फ्लोलेस लाइक अ ब्राह्मण एंड दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन द ब्राह्मण। ऐसे व्यक्ति को हम ब्राह्मण कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को मतलब एक लाइक अ बिहेव लाइक अ ब्राह्मण, जो व्यक्ति इक्विनिमिटी स्थित प्रज्ञ बन गए, वैसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे। द बेस्ट क्वालिटी, द ग्रेट क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण इज स्थित प्रज्ञ, द इक्विपोज इन ऑल कंडीशन, वेदर देयर इज सक्सेस और फेलियर, वेदर देयर इज हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, वेदर देयर इज ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस थिंग, वेदर देयर इज अ फेमी एंड इनफेमी, सभी परिस्थितियों में एक समान रहना है, मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, सब कुछ हो, मतलब हमें इक्विपोज रहना है, इक्वली लोगों को ट्रीट करना है, ऐसे व्यक्ति को हम ब्राह्मण कहेंगे। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, ना प्रश्यंति प्रियम प्राप्य, ना प्रश्यंति प्रियम प्राप्य, नो द्विजते प्राप्य च प्रिय, स्थिर बुद्धिर सम्मुढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मानि स्थितः, ब्रह्मविद ब्रह्मानि स्थितः। यहाँ पे क्या कहते हैं ब्राह्मण की क्वालिटी में? लॉर्ड कृष्ण कहते हैं अ पर्सन हु इज नाइदर रिजॉइस अपॉन अचीविंग समथिंग प्लेजेंट नॉर लेमेंट अपॉन ऑब्टेनिंग समथिंग अनप्लेजेंट, जो उसके मन अनुसार कोई कार्य होता है उसको कभी खुशी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को खुश नहीं हो जाता, अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता, जिसके मतलब जिसको सक्सेस मिलती है अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता, जिसको फेलियर मिलती है उस फेल से अपने रास्ते से भटक नहीं जाता, ऐसे व्यक्ति जो सेल्फ इंटेलिजेंट होता है, अपनी बुद्धि अपनी आत्मा के साथ जुड़ दी है और जोड़ चुका है और परमात्मा के जोड़ चुका है, एसोसिएटेड है, अनबिविल्डर है, जो भटकता नहीं है, who knows the science of God, जो भगवान परमात्मा डिवाइन कॉन्शियस है, ऐसे व्यक्ति को ट्रांसेंडेंसेस कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को ही हम योगी कहेंगे। लॉर्ड कृष्ण फर्दर से, such a liberated person is not attracted to the material sense pleasures but is always in trance, हमेशा समाधि में रहता है ऐसा व्यक्ति, enjoying the pleasure within,
जो अपने अंदर की समाधि में है उसी में वो मतलब हमेशा खुशी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन दिस वे द सेल्फ रियलाइज पर्सन एंजॉय द अनलिमिटेड हैप्पीनेस फॉर द कॉन्सेंट्रेट ऑन द सुप्रीम। तो परमात्मा में फोकस करते हैं और अनलिमिटेड हैप्पीनेस को प्राप्त कर लेते हैं। लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड, एन unintelligent person doesn't take part in the source of miseries which are due contact with the material senses. O son of Kunti, such a pleasure have a beginning and end. So wise a man doesn't delight in the ram. जो मतलब मटेरियल चीज़ों से हमें खुशी मिल रही है, जो मतलब बुद्धिशाली व्यक्ति जो ब्राह्मण है, ऐसा व्यक्ति मटेरियल चीज़ों से खुश नहीं हो जाता, ना ही दुखी होता है। बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जिज ऑफ द मटेरियल सेंसेस, अगर जो हमारा अर्जिज है, हमारी इच्छा है, हमारी कामना को हमने कंट्रोल कर लिया, जो हमारी सेंसेस को हमने कंट्रोल कर लिया बिफोर लिविंग द बॉडी, प्रेजेंट बॉडी, एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, एंड ही इज वेल सिचुएटेड एंड हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। ऐसा व्यक्ति वेल सिचुएटेड, स्थापित है, स्थित प्रज्ञ है और परमात्मा में एस्टैब्लिश है ऐसा व्यक्ति। दिस इज सेड बाय लॉर्ड कृष्ण, दिस इज कॉल्ड ब्राह्मण। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण, जो परमात्मा में जिसका मन स्थित है, अपनी बुद्धि स्थित है, अपनी सेंसेस इंद्रिया स्थिर है, परमात्मा में स्थित है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे। लॉर्ड कृष्ण फर्दर सेड, वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, हु इज एक्टिव एंड रिजॉइस विद इन, एंड हुज एम इज इनवर्ड इज एक्चुअली इन परफेक्ट मिस्टिक, ऐसा व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे। ही इज लिबरेटेड इन द सुप्रीम एंड अल्टीमेटली ही अटेन द सुपर सोल, ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। उसका ब्राह्मण का जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा को प्राप्त करना और परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करना। लॉर्ड कृष्ण फर्दर से लवंते ब्राह्मण निवानम सयाय कृष्ण कमलेश चिन्ह देव यात्मानः सर्वभूताना हिते रतः, सर्वभूताना हिते रतः। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वभूताना हिते रतः। जो व्यक्ति ब्राह्मण क्या करता है पता है? सभी जीवों के हित में कार्य करता है, उनके वेलफेयर में कार्य करता है। ब्राह्मण कभी सेल्फिश नहीं हो सकता, ना ही उसको होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू बर्थ, ऑल द ब्राह्मण्स आर सेल्फिश, बट ट्रू ब्राह्मण लॉर्ड कृष्ण उस क्वालिटी के बारे में बताओ, कभी सेल्फिश नहीं होता। Those who are beyond the duality that arise from the doubt and whose mind are engaged in within and who are always busy working for the welfare of all living entities, in the welfare of all living entities, who are free from the all the sin, achieve the liberation in the supreme। तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उसको मोक्ष मिल जाएगा, ब्राह्मण को मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। Those who are free from the anger, ब्राह्मण को कभी गुस्सा नहीं आता। ऐसे जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, जिस व्यक्ति की इच्छा है, कामनाएं होती, वो व्यक्ति कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो अगर इच्छा है, कामना है, जो परमात्मा में समर्पित करो, परमात्मा में अपना बुद्धि लगाओ। जो परमात्मा बुद्धि लगाता है, परमात्मा में अपनी कॉन्शियसनेस है, अपनी बुद्धि है, परमात्मा को समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे। वो आर सेल्फ रियलाइज्ड, ब्राह्मण आर ऑलवेज सेल्फ रियलाइज्ड and who are self-disciplined and constantly endeavoring for the perfection are assumed for the liberation in the form of in the supreme and very near in future. In very near future, it will definitely get a supreme, the place of supreme Lord. Lord Krishna further said, shutting out all the external senses object, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breath within the nostril, thus controlling the mind, senses and intelligence and transcendentalist aim at the liberation, become free from the desire, fear and anger, who is always in the state of certainly liberated। ऐसा व्यक्ति में ब्राह्मण है ना, हमेशा लिबरेटेड स्टेट में पहुंच चुका है, जो अपने फियर, एंगर एंड डिजायर को कंट्रोल कर लेता है, उसके परे हो जाता है, उसमें कभी एसोसिएट नहीं होता। ब्राह्मण को डर नहीं होता, गुस्सा नहीं आता और इसकी इच्छाएं नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे। A person in full consciousness of me, knowing me to be a ultimate beneficiary of all sacrifice and austerities, the supreme lord of all planets and demigods. Hare Krishna said, the person who is in my consciousness, that person will consider me as a supreme god and supreme lord of all the planet and demigods, and the benefactors and well-wishers of all the living entity attain the peace फ्रॉम द पेन्स ऑफ द मटेरियल मिजरी। जो जीवन के दुख से मुक्त हो जाता है, सौरों से मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति परमात्मा में अर्थात लॉर्ड कृष्ण में अपने आप को एस्टैब्लिश करता है,
So this is all the quality of Brahmin, and I am not talking about the quality on the basis of the birth, the quality which we have to achieve, we have to develop on the basis of Srimad Bhagavad Gita, not on the basis of the birth. This is all the this is means the basic things is all about the occupation, work, karma, deeds, and our action. The quality of the Brahmin is depend self-situated, self-realized, free from the anger, fear, and desire, always in divine consciousness, always situated into Lord, and always seeing all the people equally, equanimity of the mind. These all qualities are belong to Brahmin. So Brahmins are not not belong to, not created, or how to say, not born from the birth, or not from the heritage. Brahmins from the action, from the anybody can be Brahmin, not on the basis of the birth. So thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe.